Tamasoma Jyotirgamya, lead us from darkness to light. Namaskar, good evening. Ladies and gentlemen, on behalf of the Bharat Bodh Kendra, Habitat Library and Research Center, India Habitat Center, I extend a heartfelt welcome to all present for this session of the ISC ICPR Study Circle Lecture Series. This is one of the many initiatives taken by our Honorable Director, Professor Dr. K.G. Suresh, to create meaningful conversations around India's knowledge systems, culture, and heritage. May I now request the dignitaries to please join us on dais. May I request Professor Dr. K.G. Suresh, Director, India Habitat Center, Professor Parikshit Singh Manhas, Director, Consortium for Educational Communication, UGC, Shri Mukul Kanitkarji, noted educationist, thinker, and author, Professor Bindu Puri, Center for Philosophy, Jawaharlal Nehru University. To begin this event on an auspicious note, may I request our esteemed dignitaries to kindly come forward for the lighting of the ceremonial lamp, symbolizing the light of knowledge. Thank you to all our distinguished guests. May this light guide today's discussion with clarity and purpose. May I now request our director, Professor Dr. K.G. Suresh, to facilitate our chief guest. Further request to facilitate our speaker and chief guest. I now invite Ms. Khushi to kindly take over the proceedings and moderate the session further. Thank you. A very good evening to all present. I warmly welcome you to the second lecture of the IHC ICPR Study Circle. It is truly heartening to witness the continued engagement of this august gathering in this collaborative academic endeavor. It is my privilege to formally introduce the distinguished dignitaries who have graced today's event with their presence. We are honored to have with us the conveners of the study circle, Professor K.G. Suresh and Professor Bindu Puri, whose support has been integral to the smooth organization and effective conduct of this lecture series. Professor Suresh is a distinguished journalist, academician, institution builder, and an influential voice in media education and public communication. He currently serves as the director of the India Habitat Center, New Delhi, one of the country's foremost intellectual and cultural institutions. Professor Suresh has played a pivotal role in strengthening media education in India, particularly through his role in introducing journalism programs in Indian languages. He has worked as chief political correspondent with the Press Trust of India, followed by key editorial and consulting assignments with prominent media organizations such as Doordarshan News and Asianet News Network. In his transition to academia and institutional leadership, Professor Suresh served as Director General of the Indian Institute of Mass Communication, Delhi, and the founder dean of the School of Modern Media at the University of Petroleum and Energy Studies, Dehradun. Later, he was appointed Vice Chancellor of the Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication, Bhopal.
He is also the founder president of the Global Media Education Council and the vice president of Indian Communication Congress. Professor Suresh has been the recipient of numerous prestigious honors, including the Ganesh Shankar Vidyarthi Puraskar in the year 2020, awarded by the Kendriya Hindi Sansthan Ministry of Education for his outstanding contribution to journalism. He has also received the PRSI Leadership Award in the year 2017 for his excellence in public relations. With great pleasure, I now invite Professor K.G. Suresh to deliver the welcome address. Thank you, Khushi. Most respected Mukulji Kanitkar is a noted thinker, author, and organization builder. I have had the good fortune of learning a lot from him at the Vivekananda Kendra, Kanyakumari, and also subsequently in the Bharatiya Shikshan Mandal, through which he helped in shaping the National Education Policy 2020. Not many people are aware that he played a critical role in what is the National Education Policy 2020 now. My friend, Professor Minhas, we are really honored that he recently joined barely 2 weeks back? 3 weeks back, and this is his first public engagement. He is the director of the Consortium of Educational Communication, which provides e-content, and also it is known as the Internet University, the only Internet University in the country, if I may call it, Digital University. Professor Bindu Puri, the co-convener of this program, and all the esteemed members, distinguished faculty members from different colleges and universities, scholars, and friends. I don't want to come in between you and Mukulji, because Mukulji is a well-known orator, and I have seen him in many parts of the country, and he is a repository of great knowledge. And we thought that in the second edition of the IHC ICPR Study Circle, the first edition was addressed by the ICPR Member Secretary, Mr. Sachidanand, Professor Sanjidanand Mishra. We thought that nobody would be able to do justice to this topic as much as somebody who has worked at the grassroots can. So I'm sure that, I don't need to talk much about it. You will realize it in the next few minutes. For those who are attending this ICPR IHC Study Circle for the first time, I just want to give you a brief background. We have set up the Bharat Bodh Kendra about 6 months back. The whole idea is to create a space where our members and researchers can understand Indian philosophy, Indian culture, Indian civilization, Indian belief systems in a dedicated space. So those who are members of the library would certainly have visited that place. We are trying to enrich it with the best of books available on the subject, on Indian knowledge systems. Along with that, we have started a series called the Sanlap series. The Sanlap series is discourse where the whole idea is to go a little deep beyond the superficial understanding that we have. For example, one of the first sessions we have had was on Odissi. I'm sure that many of us watch classical dance performance from time to time. But to understand this dance format, to understand the aesthetics and the therapeutics of Odissi, we need to go a little deeper. So that's why that particular segment was. We also did a workshop on Natya Shastra. We are, as a nation, we communicate a lot. We have been communicating for centuries. And there have been many texts
which have laid the foundation for communication in this country. And one of them is Natya Shastra. So it is important to understand Natya Shastra if you want to understand Indian communication tradition. So our effort is constantly, we have recently started the IHC Connect also, through which we are talking about, we had the first meeting where we talked about how media can play a constructive role in building a Viksit Bharat. What should be the role of media? So we are engaging with these topics. We have also started collaborations with like-minded organizations. For example, on social sector issues, we have a tie-up with Prayas, where habitat-related issues are discussed. We have a tie-up with HEAL Foundation with regard to health issues, which is so important, Swasth Bharat, as a precondition to or a prelude to Viksit Bharat. This apart, we have launched the Utsav series. And I'm sure many of you would have relished the Onam Sadhya, which was organized for the first time here. We also had for the first time the Chhath celebrations at Habitat, where you could savor the flavors of Bihar. We had the Navratra celebrations, we had Christmas, and of course, now we are going to have Lodi, and with the Punjabi Thali in tow. So whether it is food for thought or food for your tummy, the emphasis is on understanding our own roots. Because Indians are global citizens. That is what our ancestors had taught us about Vasudhaiva Kutumbakam, but with strong Indian roots. So friends, on that note, I would like to invite the keynote speaker of the day, but of course, Khushiji will be, giving the introduction. But we would love to have your feedback. After his address, we will have an open Q&A session also. So please do, particularly the research scholars, do take down your notes, and I can assure you that this is going to be a really interesting session. Thank you for braving the winter weather and joining us for this study circle meeting. Thank you so much. We are equally fortunate to be joined by the co-convener of the study circle, Professor Bindu Puri, whose dedication and academic insight have been instrumental in shaping this initiative. Professor Puri is an eminent scholar of modern and contemporary Indian philosophy as well as moral and political philosophy. Currently, she teaches at the Center for Philosophy, School of Social Sciences, Jawaharlal Nehru University. Professor Puri has published over 60 research papers in edited volumes and leading philosophical and interdisciplinary journals. She has written 4 major monographs, the most recent being Rabindranath Tagore, Peace in an Enchanted World. She has also co-authored with Professor Mrinal Miri, Gandhi for the 21st Century, Religion, Morality and Politics, and has edited 9 books, notably her edited volume, Reading Sri Aurobindo, Metaphysics, Ethics and Spirituality, was translated into German in the year 2024. Her most recent co-edited book with Professor Sachidanand Mishra is Indian Nationalism, a Reader. Professor Puri is also the general editor of the Springer Nature book series, Indian Philosophy, Past and Present. An experienced academic administrator, Professor Puri has chaired the departments of philosophy at both Delhi University and JNU and has been a chairperson of the governing body of Aditya Mahavidyalaya, University of Delhi. She has been a member of the academic committee of the Army Cadet College at the Indian Military Academy, Dehradun, and currently serves on the academic committee of the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie. Professor Puri is a member of the Indian Council of Philosophical Research and serves on its governing body. She has delivered several prestigious international lectures, including the M.K. Gandhi Lecture on Peace and Humanities in the year 2017 for the Mahatma Gandhi Peace Council, Ottawa, and the Sutkin Oration at Queen's College, University of Melbourne in the year 2023. It is my honor to now request Professor Puri to address the gathering and introduce today's theme. Ma'am.
It's a great honor to welcome such a wonderful speaker like Mukul Kanitkar ji, and also our chief guest, Professor Manhar, who is here with us today. And this is a lecture series on the relationship between the human and non-human world in Indian philosophy. The India Habitat Center is the most appropriate space for reflections on this theme, but it's also the most appropriate time in the intellectual history of our country for making these inquiries, because we are in a very interesting moment in the history of ideas. We are poised between ideas of progress, moving to an ideal point, which Professor Suresh has just referred to, coming out of colonial stereotypes to talk about Viksit Bharat. And also we are thinking of arriving at what K.C. Bhattacharya famously called Swaraj in ideas, moving out of cultural subjection, which is very different from cultural assimilation. So why is the habitat the appropriate space? Because it's built on the idea of synergy between people and institutions to resolve habitat-related problems. And if you consider the way the world with all the climate problems, this kind of a harmony of synergetic relationships is very, very important. And there is a huge significance of an alternative way of looking at that relationship. Alternative to what? To the Western way, which has dominated this space for a very long time. I would be very out of order if I did not record over here the role that the leadership of this series, the convener, which comes in the person of the leading scholar and journalist, Professor K.G. Suresh, who not only has the deepest ties with India's intellectual past, but he has been a part of an ideational Swaraj through his writing, through his leadership, and through his, whole career in journalism. Indeed, when he became the director of the IHC, as he said, the Bharat Bodh Kendra was integrated with the library and became a specialized center to deepen public understanding of India's civilizational legacy. I need to mention here today the speaker, Shri Mukul Kanitkar ji, who has not only been the organizing secretary of the Bharatiya Shikshan Mandal for many years, but a keen scholar of the philosophy of Swami Vivekananda. He has made original contributions towards a contemporary understanding of Indian knowledge tradition, and indeed he kind of embodies the wisdom of India's civilizational legacy. And the theme, to talk about the theme, relationship between the human and non-human world in Indian philosophy. You may say, why do we need to talk about this at all? After all, we have so many departments in universities, and academia has already had so much to say post the pandemic. One answer is we are looking at it entirely from the Western tradition, which has a universal kind of unitary epistemology and looks at it from a very man-centered perspective. And this not only leaves out the diversity of opinions from across the world, but also our own very diverse Indian tradition. And you could say that in the Indian tradition, besides the great diversity of schools, there is a relationship with nature which is not man-centered. So you can look at it from a Sankhya perspective of dualism or an Upanishadic perspective, but you will see that in India, when there is the idea that when you look at things in a multiplicity, then you think of multiplicity as final and you try to gain possession of things. But when you look at it through the infinite soul, then there is the idea of union. And this is really at the heart of our classical tradition and literature. And the non-human world entered into such a close companionship with the human world that ancient Indians living out their daily life was in a way that they could not ever think of their surroundings as separate or as hostile. The view of the world which India has taken can be summed up in the word Sachitanand. The first phase of this word is Sat.
the simple fact that things are one, the fact which relates the individual human to all things through the relationship of common existence. Then there's Chit, the fact that we know, which relates us to everything through the relationship of knowledge. And most important, Anand, bliss, that we relate through all things through the relationship of love. This sentiment is not restricted to academic philosophy. You find it in literature. You find it in Shakuntala, where there's a contrast between the court life and the ashram life. You find it in Meghdut. To put together the Indian philosophical perspective, there are 4 points. That in India, nature and the human world are not separate. 2, the non-human world is autonomous and equal with the human world. It's not there to serve human need. 3, human being can draw comfort from nature. This you find beautifully portrayed in Tagore. And 4, the human being has a great debt to repay to the non-human world and to God. So the Indian tradition puts forth a powerful message, one which remains valid today and for the future. And this message is from the forest civilization of India, which is inspired by the ethics of non-attachment and purposelessness of the Gita. That is, the relationship between man and nature should not be guided by utility and just following out of human purposes. It should be joyous in a spirit of absolute equality. That's how we should live with nature. And this, you see, is very different from the West, where if you read Shakespeare, you'll see that, for instance, in Hamlet, there is the scene of the barren heath where there is nature being personified as, some kind of forces of tragedy. And so there is a different attitude in India, in tribal philosophy, in all the diverse schools of Indian philosophy. And you find it continuing in modern Indian philosophy with Tagore, speaking about how nature's festivals are our own holidays. They are invitations to us. The Indian tradition is trying to show us that relationships can be about joy and without purpose. So I am going to end with the message of the forest civilization of India with the words of Rabindranath Tagore. My reverence goes out to the man who, when taking an emergence, can receive the water upon his body and upon his mind as well, in a devout spirit. For him, the touch of habit has not been able to tarnish the mystery which is in fire and earth, water and food. So this is really what we want to explore in this lecture series. And the most fitting moment is to be able to hear Kanitkarji today. Thank you so much. We are privileged to have with us today Sri Mukul Kanitkar, an eminent educationist, thinker, and author, as the keynote speaker for today's lecture. Sri Kanitkar is widely recognized as a national authority on Swami Vivekananda and Indian knowledge systems, as well as a celebrated motivator, orator, and youth icon. He currently serves as the member of the All India team of the Prachar Vibhag of the RSS based in Nagpur, and as an adjunct professor at the Veermata Jijabai Technological Institute, Mumbai. Sri Kanitkar has served in several significant educational, institutional, and administrative capacities over the past 3 decades. He has been a pracharak since 1990 and has worked with Bharatiya Shikshan Mandal from 2012 to 2023, serving as its national organizing secretary from 2016 onwards. Earlier, he spent 22 years as a live worker, Jeevan Rati of the Vivekananda Kendra, Kanyakumari, and also served as the secretary of the Vivekananda International Foundation in New Delhi from 2008 to 2011. He has additionally been a member of the Madhya Pradesh State Yoga Parishad since 2007. A prolific author, Sri Kanitkar has written more than 12 well-known books, including Gadhe Jeevan Apna, Sangathan Gadhe Chalo, Parivar Bane Pathshala, and Essential Vivekanand. His popular Hindi book, Pariksha De Haste Haste, has been translated into 5 languages. He has authored over 2,500 articles in Hindi, English, and Marathi, and has delivered more than 10,000 lectures across the country.
A sought-after academic speaker, Sri Kanetkar has served as visiting faculty at several higher education institutions, including the Maharaja Sayyaji Rao University in Baroda, IIT Mumbai, and IIT Guwahati, where he has conducted courses on Gita and Management, Sustainable Finance, and the Bharatiya Gyan Parampara. With great honor, I now invite Sri Mukul Kanetkar ji to deliver today's lecture titled Rising Bharat from the Deep Roots. धन्यवाद इतने अच्छे परिचय के लिए। आदरणीय केजी सुरेश जी, परीक्षित मनास जी, बिंदु जी, यहाँ उपस्थित आदरणीय बहनों और भाइयों, मैंने हिंदी में शुरू किया तो आपको आश्चर्य लगा होगा। आई हैव नथिंग अगेंस्ट इंग्लिश एंड आई कैन स्पीक वेरी वेल इन इंग्लिश। आई वाज सेक्रेटरी एट विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, सो आई हैव स्पोकन इन इंग्लिश मेनी टाइम्स। पर यहाँ पर मुझे लगता है कि सबको हिंदी आती है। तो हमारे एक मित्र है जो एक चिकित्सा मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे जबलपुर में, उन्होंने एक जगह कहा था कि उस भाषा में सहजता होती है समझने में जिस भाषा में आप स्वप्न देखते हो। मेरी मातृभाषा भले ही मराठी है, लेकिन मैं स्वप्न हिंदी में देखता हूँ, इसलिए हिंदी में बात करना चाहता हूँ। और फिर भाषाओं की मर्यादाएं भी होती है। जब अभी बिंदु जी कह रही थी फॉरेस्ट सिविलाइजेशन, आई वॉज रियली परप्लेक्स्ड। If it is a civilization, it has to do with civic, and civic has to do with cities. If it is forest, how can it be civilization? That is the problem with the language, because it comes with its own baggage. उनकी जो परंपरा है, उनकी जो इतिहास है, उस इतिहास को लेकर के ही भाषा आती है। इसलिए आरण्यक को कैसे अंग्रेजी में बता पाएगी बिंदु जी? आरण्यक है वो, वेद साहित्य का एक तृतीयांश अंश जो आरण्यक है, जो अरण्य से निकला है, इसलिए आरण्यक है, बिकॉज इट इज बॉर्न इन अरण्य। अरण्य में जहां रण नहीं होता, देर इज नो ड्युअलिटी, देर इज नो कॉन्फ्लिक्ट, देर इज सो मच ऑफ हार्मनी। और मतलब मनुष्य और औरों में नहीं, क्योंकि जहां अद्वैत है वहां ह्यूमन और इनह्यूमन कुछ नहीं ना। हम तो सबको ही ह्यूमन बना देते। एक परिवार में भोजन करने गया था, मेरा प्रिय एनेक्डोट है, मैंने कई बार ये प्रसंग बताया है, कुछ लोगों ने सुना होगा। एक परिवार में भोजन करने गया तो 7वीं के बच्चे ने मेरे को पहेली पूछी। तो जैसे उसने कहा, कौशल नाम उसका, तो जैसे कौशल ने कहा मैं पहेली बूझना चाहता हूँ, मैंने कहा रुक, तेरे विद्यालय का नाम क्या? तो दिल्ली के सरदार पटेल विद्यालय का छात्र था, सरकारी विद्यालय। हाँ, तो मैंने कहा तेरे शिक्षकों को मेरा प्रणाम है। बोले क्यों? मैंने कहा आज के युग में जिस विद्यालय के बच्चे पहेली बूझते हैं वहां पर शिक्षा जीवित है, क्योंकि पहेली बूझना और अंत्याक्षरी ये मनोरंजन तो प्री मोबाइल पी टेलीविजन कालखंड का है। हमारे बचपन में बत्ती गुल हो जाती थी तो या तो अंताक्षरी खेलते थे या पहेली बूझते थे। मेरे आयु के लोग जान सकते, युवा इस आनंद को नहीं ले सकते, क्योंकि आजकल बिजली गुल नहीं होती है तो इन्वर्टर और जनरेटर चालू हो जाते हैं, प्रकृति की ऐसी तैसी। तो इसलिए उस आनंद को लिए हुए हम लोग आज भी है आपके बीच में। तो उसने पहेली बूझने को कहा, तो पहला आनंद तो यही था कि शिक्षा जीवित है। और दूसरी पहेली उसने इतनी अद्भुत बूझी, उसने कहा, मुझे पूछा गाय की बहन कौन? देखिए अभी इनह्यूमन कहाँ रहा, गाय इनह्यूमन नहीं रही, क्योंकि बहन पूछ रहा है। संबंध तो मनुष्य का गुण है, तो संबंध स्थापित कर रहा है वो। मैंने कहा बहन, गाय की बहन, तो आपके भी मन में पहला उत्तर आया ही होगा भैंस। मेरे मुंह से निकला है। उसने कहा नहीं आप कुछ भी बोलते हो। अरे मैंने कहा दोनों दूध देती है, तो बोले दूध तो बकरी भी देती है। मैंने कहा तो बकरी है? बोले नहीं वो भी नहीं। बोले लॉजिक होना चाहिए ना किसी बात में। मैंने कहा हाँ ये बात तो ठीक है, उत्तर में लॉजिक होना चाहिए। फिर जब मैंने कहा हार गया तो वो बालक खुश हो गया। पहेली बूझने वाला तभी खुश होता है जब सामने वाला हार गया मान जाए, और पहेली का उत्तर वही सही होता है जो पहेली वाला बताता है, बाकी सारे उत्तर तो गलत ही होते हैं। तो उसने, जब मैंने कहा हार गया, तो उसने माँ को आवाज लगाई, माँ मुकुल भैया हार गए।
इतना बड़ा परिचय दिया तो आप समझ सकते हो कितना आनंद हुआ होगा उसको। ऐसे विद्वान व्यक्ति को मैंने हरा दिया। मैंने पूछा बेटा आप उत्तर बता, बिना उत्तर बताए तेरा और उत्तर का लॉजिक बताए वो पहेली तो पूरी नहीं होगी। तो उसने उत्तर दिया गाय की बहन बिल्ली। मैंने कहा तूने जूलॉजी की ऐसी तैसी कर दी। मैंने कहा जितना प्राणी शास्त्र मैंने पढ़ा है ये बोवाइन फैमिली की है, वो फेलाइन फैमिली की है, दोनों की फैमिली अलग, बहनें कैसे हो सकती है? बोले वो मुझे नहीं पता, गाय हमारी माँ है, बिल्ली मौसी है। तो मौसी तो माँ की बहन होती है। ये भारत बोध है जहां हैबिटेट इज नॉट रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड इनह्यूमन, यहाँ एवरीथिंग इज ह्यूमनाइज्ड, एवरीथिंग इज पर्सनलाइज्ड, एवरीथिंग इज पर्सोनिफाइड। इसलिए बद्रीनाथ जी को कंबल उड़ाया जाता है, रात को शयन करते समय नाइट ड्रेस पहनाई जाती है, और जहाँ बहुत गर्मी होती है वहाँ भगवान को भी एसी लगाया जाता है। बिकॉज हियर वी पर्सनलाइज डिविनिटी, हियर वी ह्यूमनाइज डिविनिटी, हियर वी ह्यूमनाइज नेचर। ये भारत बोध है। इसलिए जब पहली बार ये सुना कि केजी सुरेश जी इंडिया हैबिटेट सेंटर के डायरेक्टर बन गए तो मुझे आश्चर्य हुआ, ये वहाँ क्या करेंगे? जहाँ जाने में डर लगता है। जहाँ जाने ये इंडिया हैबिटेट सेंटर और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की ये ख्याति थी कि सामान्य व्यक्ति को वहाँ जाने में डर लगता है। आप एलिट नहीं हो तो वहाँ जा नहीं सकते। ऐसे ये हमारे दिल्ली में ये माहौल है। यहाँ बैठे हुए कई लोग उससे सहमत होंगे। कई लोग आज पहली बार यहाँ आए होंगे, मेरा चेहरा देख करके हिम्मत की होगी इंडिया हैबिटेट सेंटर में जाने की। और जब पिछली बार इनको मिला यहाँ पर, मैं किसी विवाह में ही आया था और वहाँ से मिलने इनको आया तो इन्होंने बताया यहाँ भारत बोध शुरू कर दिया। मैंने कहा अब हैबिटेट हो रहा है। 2017 में हमने भारत बोध नाम से अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की थी इग्नू में। प्रणब मुखर्जी जी ने उद्घाटन किया था, तब वो राष्ट्रपति थे और भारतीय शिक्षण मंडल के कार्यक्रम में आए थे। उसमें एक अद्भुत वक्ता आए थे, दुर्भाग्य से अब हमारे लोगों के बीच में नहीं है, डॉक्टर BM हेगड़े, एलोपैथ, बहुत बड़े जाने माने। और BM हेगड़े जी को जब उस भारत बोध में बुलाया गया, मैंने पूछा आप किस विषय पर बोलोगे, तो उन्होंने कहा मैं धर्म संस्कृति पर बोलूंगा। एन एलोपैथ, डॉक्टर, हार्ट स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट स्पीकिंग ऑन धर्म एंड संस्कृति। मुझे लगा क्या बोलेंगे। उन्होंने बात ही यहाँ से शुरू की कि सारा का सारा चिकित्सा शास्त्र, आयुर्विज्ञान, द होल मेडिकल साइंस इज नथिंग बट धर्म एंड संस्कृति। बोले शरीर के प्रत्येक ऑर्गन का एक धर्म है, शरीर की प्रत्येक कोशिका का एक धर्म है, शरीर के प्रत्येक ऊतक का, ऑर्गन, टिश्यू, सेल, प्रत्येक का अपना अपना धर्म है। यानी उसकी संरचना है, कंपोजिशन है, और उसका फंक्शन है, ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है। यदि शरीर का प्रत्येक कोशिका अपने धर्म का पालन करे तो शरीर स्वस्थ रहता है, और उस धर्म का पालन करने के लिए उस शरीर का वातावरण ठीक होना चाहिए। वो वातावरण है संस्कृति। संस्कृति ठीक होती है तो धर्म का पालन होता है। ये शरीर शास्त्र अद्भुत उन्होंने सिखाया। तो मुझे लगता है हैबिटेट यानी वही ना, जिस परिस्थिति में हम रहते हैं। तो जो परिस्थिति, जो संस्कृति, वह परिस्थिति यदि संस्कारवान हो, यानी संबंधों को पहचानने वाली हो, वन विच रिकॉग्नाइजेस रिलेशन। यदि आपका एनवायरमेंट, यदि आपकी पारिस्थितिकी, यदि आपका आस पड़ोस संस्कारवान हो, यानी संस्कृति स्थापित हो, तो आप अपने धर्म का, कर्तव्य का पालन करके
आनंद की अनुभूति कर सकते हैं, ये सच्चिदानंद है। ICPR के मेंबर सेक्रेटरी ये भारतीय फिलॉसफी है सच्चिदानंद। ये जीवन है, ये सत्य है जीवन का। ये केवल भारत के लिए नहीं है, भारत में पैदा हुआ इसलिए इसको भारतीय कह दो, पर ये तो यूनिवर्सल है ना, ये तो सार्वभौमिक सार्वजनीन है, ये सबकी चेतना का अंग है। इसलिए यहां पर भारत बोध केंद्र का स्थापित होना, इसलिए मैंने कहा अब रियल हैबिटेट हो गया, अब परिस्थिति का संस्कार प्रारंभ हो गया। तो इसलिए ये भारत पारिस्थितिकी केंद्र आपका सही अर्थ में संस्कृति केंद्र बना, तो ये धर्म की उड़ान भरेगा। इसलिए जब मुझे पूछा क्या आप विषय लोगे, तो मैंने ये विषय लिया। परस्पर विरोधी लगते हैं ना, उड़ान और जड़े। उड़ान तो ऊपर, जड़े तो नीचे, पर जड़े जितनी गहरी होगी उड़ान उतनी अधिक समर्थ होगी, उड़ान उतनी अधिक सहज होगी। ये केवल मैं नहीं कह रहा, ये सारा विश्वास समझ रहा है। उड़ान तो भारत भर रहा है, किसी भी अर्थ में ले लो। बिल्कुल आधुनिक परिमाणों को भी लेना है तो GDP में भी नंबर 3 हो गया, 4 हो गया, जो भी चल रहा है। जल्दी 2 हो जाएगा, पॉपुलेशन में 1 हो ही गया ना कौन बचा पाया, कौन रोक पाया। तो वहाँ भी GDP में भी हो जाएंगे, और भी बाकी सारे पैरामीटर्स ले लो, उसमें भी चले जाएंगे। मतलब इकोनॉमिक्स ले लो तो उड़ान भर रहे दिख ही रहा है, टेक्नोलॉजी ले लो, तंत्र ज्ञान ले लो, उड़ान भर ही रहे। विश्व के अनेक देशों के पास नहीं है उतना, हमारे यहाँ डिजिटलाइजेशन हो गया। जैम ट्रिनिटी की बात होती है। जब मुझे मेरे मित्रों से पता चला, यूनाइटेड स्टेट्स में रहने वाले, USA में रहने वाले, कि उनको जब वैक्सीन मिली तो उस वैक्सीन का सर्टिफिकेट एक कोरी चीट के ऊपर पेंसिल से लिख करके दिया गया था। मैंने कहा मेरा तो मोबाइल में है, तो उन्होंने कहा नहीं हमारा मोबाइल में नहीं है। तब पता चला कि कुछ बात में तो हम आगे हैं। दुनिया के सबसे कर्जदार देश से तो हम दुनिया कुछ और बात में भी आगे है ना। वो GDP में नंबर 1 है, उससे ज़्यादा नंबर 1 कर्जे में है। $31 ट्रिलियन का कर्जा है, $28 ट्रिलियन का GDP है अमेरिका का। मैं मतलब जो है वो बता रहा हूँ। मेरे को उनसे, डोनाल्ड ट्रंप से कोई दुश्मनी नहीं है। बेचारा अपने देश के लिए बहुत अच्छा काम करा है। आई लाइक हिम वेरी मच। वो अमेरिका के लिए बहुत अच्छा काम कर। उससे ज़्यादा ईमानदार आदमी कौन जो बोले मेक अमेरिका ग्रेट अगेन? उससे ज़्यादा सत्यनिष्ठ व्यक्ति कौन जो मान रहा है कि अभी ग्रेट नहीं है? अभी तक तो किसी अमेरिकी प्रेसिडेंट ने ईमानदारी से माना नहीं कि ग्रेट नहीं है। उसने माना मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी था, बनेगा, अभी नहीं है। इतना ईमानदार आदमी है। ऐसे आदमी को आप लोग गलत कहते हो कोई लोग, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। हमारे पर टैरिफ लगा के उसने बहुत बड़ा कल्याण किया है। जब 1998 में हमने पहली बार चमत्कार दिखाया था टेक्नोलॉजी का, 11 मई 1998 को, 11 मई 1998, क्या हुआ था? तब मैं राजस्थान में ही था। मतलब मेरा कोई हाथ नहीं था उसमें, लेकिन मैं वहाँ से केवल 180 किलोमीटर दूर जोधपुर मेरा केंद्र था उस समय 98 में, और पोखरण में धूम हुआ था और सारी दुनिया हिल गई थी। और केवल इसलिए हिल नहीं गई थी कि भारत में बम फोड़ा, इसलिए हिल गई थी कि 3,500 वैज्ञानिक लग गए, लेकिन एक भी नहीं खरीदा जा सका और CIA को पता नहीं चला। उसी दिन रात को CIA के डायरेक्टर को बदल देना पड़ा। अभी मदुरो और उसकी बीबी को उठा के ले गए क्योंकि सारे गार्ड बिक गए। इलीट गार्ड, उसके पर्सनली पिक्ड गार्ड, जिनका उससे संबंध था, रक्त का संबंध था, वो भी बिक गए। इसलिए बिना किसी रक्तपात के मदुरो को उठा लिया गया और हमारे 3600 वैज्ञानिकों में से एक भी नहीं बिका। और वो सारे 3600 वैज्ञानिक ऐसे थे, यदि भारत को छोड़ करके विदेश में जाते तो इसरो या DRDO जितनी सैलरी देता था उससे 36 गुना सैलरी मिल सकती थी, उसके बावजूद नहीं बिके। ये डीप रूट्स है, ये गहरी जड़ें होती है। यहां पर आप अपनी चेतना से गाइड होते हैं। आजकल सब जगह लिखा होता है ना, जहां जाओ वहां लिखा होता है यू आर अंडर CCTV सर्विलांस।
और फिर आप थोड़ा सा देख लेते हो ठीक ठाक है कि नहीं। जब बाहर के कैमरे से इतने सचेत हो जाते हो, भारत का सही भारत बोध है, अंदर का सीसीटीवी चालू है कि नहीं है। उन 3600 लोगों का अंदर का सीसीटीवी चालू था, इसलिए बिके नहीं। बिकता वो नहीं जिसका अंदर का सीसीटीवी चालू होता है। जो उस सर्विलांस में रहे वही ऊंची बढ़ान भर सकता है। तो तब भी हमारे ऊपर सैंक्शन लगा दिए थे 3 साल के लिए। 1998 से लेकर 2001 तक भारत के ऊपर केवल आर्थिक सैंक्शन नहीं थे, टेक्नोलॉजिकल सैंक्शन थे। क्रायोजेनिक इंजन फ्रांस देने वाला था, उसको मना कर दिया था। आई कैन गो ऑन एंड ऑन। और उन्हीं 3 वर्षों में भारत की सर्वाधिक आर्थिक प्रगति हुई है, क्योंकि हमारा इनर डोमेस्टिक पोटेंशियल उठ करके खड़ा हो गया। और थोड़ा सा 50-60% टैरिफ लगा ले तो भारत के व्यापारी और खड़े हो जाएंगे। उड़ान तो भर ही रहे, हम हर क्षेत्र में भर रहे। यूपीआई आज दुनिया के 40 देशों ने ले लिया। उड़ान की बातें बताने की आवश्यकता नहीं है, हम सब लोग उसको अनुभव कर रहे हैं। कोरोना के समय में कार में गुवाहाटी गया और नागपुर से गुवाहाटी तक 6000 किलोमीटर जाकर के रास्ता घूम करके आया। और मैं तो 1999 में पाराद्वीप में भी जीप लेकर के गया था। जोधपुर से लेकर पाराद्वीप उड़ीसा में जीप लेकर के गया था। तो इसलिए रास्तों की स्थिति 1999 में भी मैंने देखी थी और 2019 में भी देखी। 20 साल में क्या बदल गया वो देखा मैंने, क्या परिवर्तन हो गया। ये भारत की उड़ान है, ये भारत की युवा शक्ति की चेतना की उड़ान है। इतना ही नहीं, फॉरेस्ट कवर बदल गया। मैंने बीकानेर को मेरी आंखों के सामने हरा भरा होते हुए देखा है। बीकानेर का रेनफॉल बढ़ते हुए देखा है। आप गूगल अर्थ पे जाइए और भारत के पिछले 20 वर्षों के अलग अलग स्नैपशॉट लीजिए। भारत का फॉरेस्ट कवर बढ़ा है, अरण्य बढ़ा। इसलिए हर क्षेत्र में उड़ान है। लेकिन केवल उड़ान से काम नहीं चलेगा भाई। सबसे बड़ी उड़ान तो उस दिन हुई भारत माता की जिस दिन वो जगत गुरु बन गई। बनेगी नहीं बोला मैंने, पास्ट टेंस में बोल रहा हूं। बन गई, ऑलरेडी बन गई। आपको नहीं पता? इन मीडिया वालों ने ब्रेकिंग न्यूज़ दी नहीं ना, इसलिए नहीं पता। मैं देता हूं ब्रेकिंग न्यूज़ और डेट बताता हूं किस डेट को भारत माता जगत गुरु बन गई। 21 जून 2015 को भारत माता जगत गुरु बन गई। क्या हुआ था 21 जून 2015 को? 193 कंट्रीज, 193 देशों के नागरिकों ने वहां की भूमि पर नाक रगड़ करके भारत माता को वंदन किया था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे। बहरीन में, कुवैत में, इंडोनेशिया में, टाइम्स स्क्वायर में, ट्रफलगर स्क्वायर में। क्योंकि हमारे यहाँ केवल समृद्धि को उड़ान नहीं माना जाता। समृद्धि और संस्कृति साथ साथ चलती है, तब उसको राइजिंग कहते हैं। संस्कृति को बेचकर समृद्धि नहीं, संस्कृति को बेचकर समृद्धि का मार्ग पश्चिम ने अपनाया। इसलिए आज परेशान है। आज जितनी जनसंख्या है उससे अधिक घर बांध लिए, क्योंकि एक्सपेंडिचर कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमिक्स के आधार पर जीडीपी बढ़ाने की स्थिति। आज दिक्कत है, फैमिली नहीं। डॉक्टर डेविड ब्लैंकेनहॉर्न नाम के सोशियोलॉजिस्ट ने पूरे अमेरिका का एक बहुत बड़ा सर्वेक्षण किया। इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ सेंसस टाइप ऑफ सर्वे, सच अ लार्ज सैंपल ही टुक। और उसने उस सर्वे के आधार पर पुस्तक लिखी और पुस्तक को नाम दिया, डॉक्टर डेविड ब्लैंकेनहॉर्न की किताब है, देख लेना। पुस्तक का नाम है फादरलेस अमेरिका। 1998 में डॉक्टर डेविड ब्लैंकेनहॉर्न कह रहे कि 46% ऑफ द एडल्ट अमेरिकन्स आइदर डू नॉट हैव फादर और डू नॉट नो हु देयर फादर इज। पिता विहीन समाज, पिता विहीन समाज का निर्माण हो गया। विद्यालय के अंदर क्रश निकालने पड़े, पालना घर निकालने पड़े। यह स्थिति बन गई क्योंकि समाज और संस्कृति को बेचकर समृद्धि लाए। हमारे यहाँ वो नहीं है। हमारे यहाँ विचार ही समुत्कर्ष का है, शब्द ही है समुत्कर्ष, सम्यक उत्कर्ष। द राइजिंग, उत्कर्ष, राइजिंग का एग्जैक्ट ट्रांसलेशन उत्कर्ष। उत्कर्ष समान रूप से होना चाहिए, जितना बाहरी उतना आंतरिक होना चाहिए। बाहर और अंदर से एक साथ ऊपर उठेंगे तब चलेगा।
क्योंकि आपके एक्सटर्नल पैरामीटर से लो तो मैं यहाँ खड़े होने के लायक ही नहीं हूँ। डिग्री मेरे पास केवल बैचलर्स की है, LLB किया मैंने, उसके बाद मास्टर्स भी नहीं किया। आप में से अनेक PhD किए हुए बैठे हैं यहाँ पर, तो आपसे कम पढ़ा लिखा हूँ। आप सबके सामने पढ़ाई लिखाई कोई कमाई तो ढेले भर की नहीं है। प्रचारक कुछ कमाता ही नहीं है, नो बैंक बैलेंस, नो प्रॉपर्टी, आई डोंट ओन एनी व्हीकल, आई डोंट हैव एनी प्रॉपर्टी, मेरा कोई घर नहीं, कोई जमीन नहीं, कोई जायदाद नहीं, और तीसरा मेरा कोई खर्चा नहीं। हमको व्यय पत्रक देता है प्रचारक लोग, तो मेरा व्यय पत्रक महीने का 500 रुपये, 200 रुपये, किसी कभी 400 रुपये। मतलब कभी प्रवास में अकेले चाय पीनी पड़ी तो उसी का तो खर्च है, नहीं तो फिर परीक्षित जी पिला देते, मतलब जो साथ में होता है वही पिलाता है, तो मेरा तो खर्चा होता नहीं ढेले भर का। तो किसी भी मॉडर्न पैरामीटर में मेरा तो कोई उत्कर्ष हुआ ही नहीं। ये समुत्कर्ष है प्रभु, अंदर और बाहर दोनों एक साथ बढ़ने चाहिए। तो ये केवल व्यक्ति का ही नहीं, समाज का भी, संस्कृति का भी। इसलिए हमारे यहाँ उत्कर्ष की है, राइजिंग की है डेफिनेशन है। इसलिए डीपर द रूट्स इजियर द राइजिंग। जितना गहरे जाओगे अपने अंदर, अपने आप को जितना जानोगे, जितने अपने प्रति स्थिर हो जाओगे, मैं, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरे संस्कृति, मेरे संस्कार, मेरा इतिहास, मेरे पूर्वज, जितना अंदर जाओगे उतनी उड़ान अधिक भरेगी। इसलिए इतिहास का अध्ययन इसलिए नहीं करना कि ये सिद्ध करना है कि भारत महान था, क्योंकि कितना भी सिद्ध कर लो वो लोग नहीं मानेंगे जिनको नहीं मानना है, और जो लोग मानते हैं उनके लिए सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इतिहास का अध्ययन तो केवल इसलिए करना है कि उससे भविष्य के लिए कोई मार्ग मिलता है क्या। इसलिए विषय केवल पास्ट टेंस का नहीं है, भारत बोध केवल पास्ट टेंस का नहीं है। भारत बोध ये फ्यूचरिस्टिक विषय है, ये भविष्योन्मुखी विचार है। सारे विश्व का भविष्य, मानवता का भविष्य, समूची सृष्टि का भविष्य ठीक करना है तो भारत बोध विश्व में नंबर 1 बनना आवश्यक है। तभी ये बिल्ली मौसी वाली संस्कृति वापस आएगी, तभी संबंधों की संस्कृति वापस आएगी, तभी प्रदूषण बचेगा, जब प्रकृति अपनी मां बनेगी। अभी कहते हैं, मानते नहीं है। मेरे को तो माँ ने बचपन में सिखा दिया था और आज भी करता हूँ कि सुबह उठने से, बिस्तर से नीचे उतरने से पहले क्षमा मांगना बेटा। क्या भे धरती माँ, अब मैं उतरूंगा, मेरे पैरों से तेरा स्पर्श होगा, तू मेरी माँ है, तूने मुझे सब कुछ दिया है, धारण करती है इसलिए तू धरती है। हमको धरती है ना, इसलिए वो धरती है, वो ना धरे तो हम अधर हो जाए। ऐसी धरती पर मैं अब चरण रखूंगा, पाद स्पर्शम क्षमस्व में, क्षमा कर मां मुझे। ये संवेदना यदि हर पुत्र में जग जाए तो AQI के लिए किसी दूसरे के विरुद्ध आंदोलन नहीं करना पड़ेगा, अपने प्रति जानना पड़ेगा कि है क्या ये संवेदना है क्या प्रकृति के प्रति। ये भारत बोध है जो विश्व को देना है। इसलिए डीपर द रूट्स। फ्रिट्ज ऑफ काबरा की बात बता करके समाप्त करता हूं, फिर आपके कुछ प्रश्न होंगे तो आगे बात करेंगे। गहराई पे जाने के लिए, जड़ों में जाने के लिए केवल इतिहास को पढ़ने की बात नहीं है, तत्व को समझना गहराई पे जाना है, तत्व को समझना, बात के रहस्य को समझना, सिद्धांत को समझना। यू हैव टू गो टू द प्रिंसिपल। उसके केवल बाहरी आडंबर पे जाकर के नहीं चलेगा, कथा सुनकर के नहीं चलेगा, उस कथा के रहस्य को समझना पड़ेगा, तब डीपर जाएंगे, तब गहराई में जाएंगे, तब रस पाएंगे। रस का अर्थ ही होता है जो अंदर छुपा हुआ है, वही आनंद देता है, रस ही आनंद देता है। इसलिए वो रस तक पहुंचना, डीपर जाना है। यही फ्रिट्ज ऑफ काबरा है जिसने वैज्ञानिकों के
बहुत अच्छे अच्छे इंटरव्यू लिए। अनटोल्ड विजडम नाम की उसकी पुस्तक है, उसमें बड़े बड़े फिजिसिस्ट के उसने इंटरव्यू लिए। ये फ्रिट्जॉफ कापरा भारत से प्रभावित था, भारत में खूब रहता था, गुरुदेव का मित्र था, शांति निकेतन बहुत वर्षों तक रहा और पूरे विश्व में घूमता था। ही वॉज अ फिजिसिस्ट, फिजिक्स का व्यक्ति था। सबसे पहली उसकी पुस्तक जो प्रसिद्ध हुई थी ताओ ऑफ फिजिक्स। ताओ ऑफ फिजिक्स में उसने बुद्धिस्ट फिलॉसफी के साथ फिजिक्स के सिद्धांतों को सब कंपेयर किया था। उसके बाद उसकी पुस्तक आई टर्निंग पॉइंट। फिर उसकी तीसरी पुस्तक जो अद्भुत पुस्तक है, आपने, मैं जानबूझ के पुस्तकों के नाम बता रहा हूं कि आप पढ़िए उन पुस्तकों को। अद्भुत पुस्तक, रिसर्चर यदि यहाँ बैठे तो वेब ऑफ लाइफ, अद्भुत किताब है। और जो मैंने उसकी साइंटिस्ट के इंटरव्यू की किताब बताई, वो किताब का नाम है अनटोल्ड विजडम। उस अनटोल्ड विजडम में पहला इंटरव्यू है हेजनबर्ग का। हेजनबर्ग जिसने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया, हेजनबर्ग जिसके कारण क्वांटम फिजिक्स आया, हेजनबर्ग जिसके कारण इलेक्ट्रॉनिक्स आया, सारे के सारे फिजिक्स को एक जो नूतन, आज आपके जेब में मोबाइल है, सेलफोन के टावर है, तो उसका श्रेय हेजनबर्ग को जाता है। उसने पहली बार बताया कि पराकणों के स्तरों पर, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के स्तरों पर न्यूटन के लॉ लागू नहीं होते। न्यूटन का जो स्थिति और गति का, रिलेटिविटी का नियम है कि एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति रफ्तार की गति से पूर्व दिशा में चल रही है, दिल्ली से निकली तो घंटे भर बाद कहां पहुंचेगी बता सकते हैं। वो कहता है ये बात कणों पे लागू नहीं होती। उसने ये शोध कर लिया था 1928 में, 1928 में। द पेपर वॉज पब्लिश्ड इन 1930। 2 साल अपने ही शोध को प्रकाशित करने की हिम्मत हेजनबर्ग को नहीं आई थी, क्योंकि उसको गैलीलियो स्मरण हुआ था, उसको कोपरनिकस स्मरण हुआ था कि प्रस्थापित के विरुद्ध का विज्ञान बता दो तो क्या होता है। वो कहता है, फ्रिट्जॉफ कापरा को हेजनबर्ग कहता है, आई डिड नॉट डेयर टू पब्लिश माई रिसर्च एंड माई कंक्लूजन्स बिकॉज आई थॉट द साइंटिस्ट वुड कॉल मी क्रेजी। 1929 में गुरुदेव के निमंत्रण पर हेजनबर्ग भारत में आया, शांति निकेतन में रहा। 7 दिन शांति निकेतन में रह करके आरण्य का उपनिषदों का अध्ययन किया, आरण्य में पैदा हुए उपनिषदों का गुरुदेव के साथ स्वाध्याय किया। और उसके बाद वो फ्रिट्जॉफ कापरा को कहता है, देन आई गॉट द करेज टू पब्लिश माई पेपर आफ्टर लर्निंग अबाउट उपनिषद। तो फ्रिट्जॉफ कापरा ने पूछा, उपनिषद में तुमको ये सिद्धांत मिले क्या? तो बोले नहीं, वो तो मुझे बताया था कि कणाद के वैशेषिक में मिलेगा, लेकिन उसका मैं अध्ययन नहीं कर पाया। आई डोंट अंडरस्टैंड संस्कृत एंड आई कुड नॉट गेट अ स्कॉलर ऑफ कणाद वैशेषिक दर्शन, क्योंकि ये न्याय वालों ने वैशेषिक को खा लिया, वो अलग विषय, संस्कृत वालों के साथ कभी चर्चा करेंगे। गौतम के भक्तों ने और कणाद के भक्तों को कब्जा कर लिया था, अभी वापस जगाया हमने गुरुकुल प्रकल्प में, वो अलग विषय। उसने कहा वो तो मैंने नहीं पढ़ा, किंतु मुझे यह हिम्मत इसलिए मिली because here I got more crazier ideas than my own. Here are more crazier people, उपनिषद को देख करके कहा। और उसके बाद उसने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का पेपर छापा। तो आज जो आपके जेब में मोबाइल है उसका श्रेय भी भारत को जाता है। ये बताने के लिए नहीं कहा मैंने, ये कथा सुनाई। उसी फ्रिट्जॉफ कापरा के वेब ऑफ लाइफ में बड़ा सुंदर प्रारंभ वो करता है। द फर्स्ट पेज ऑफ द बुक आस्क द रीडर टू इमेजिन। वो कहता है कि आप थोड़ी कल्पना कीजिए। क्या कल्पना कीजिए? आप जब बोल रही थी तब मुझे वेब ऑफ लाइफ याद आई। वो कहता है, कल्पना कीजिए कि आप किसी अरण्य में हैं, किसी फॉरेस्ट में हैं, और चारों तरफ क्या दिखाई देता है। और वो अद्भुत वर्णन करता है, तरह तरह के वृक्ष, छोटे छोटे तृण, छोटे छोटे घास के जैसे तिनके, उसके ऊपर छोटे छोटे पौधे, पादप, उससे बड़े वृक्ष, फिर गगनचुंबी वृक्ष जिनकी और शाखाओं के कारण और सूर्य का प्रकाश जमीन पर ना आ सके ऐसा अंधेरा। कितने प्रकार की विविधता के वृक्ष, कितने प्रकार के पुष्प, कितने रंग, हरे रंग के, सो मेनी शेड्स ऑफ ग्रीन। वर्णन करते जाता है विविधता का, अद्भुत विविधता, द डाइवर्सिटी ऑफ यूनिवर्स, द डाइवर्सिटी ऑफ नेचर। और फिर फ्रिट्जॉफ कापरा कहता है, अब आप कल्पना करो कि इसी जंगल को, इसी अरण्य को आप पृथ्वी के भीतर 20 फुट नीचे से देख रहे हैं। धरती के अंदर से 20 फीट नीचे से क्या दिखाई देगा? रूट्स एंड रूट्स एंड रूट्स एवरीवेयर, entwined in each other, a web of life। ये उसकी पुस्तक का नाम है, वेब ऑफ लाइफ।
बाहर की समस्त विविधता के अंतर्निहित एकत्व को पहचानना, जड़ों में जाना है। ऊपर का वो गगनचुंबी वृक्ष हो या छोटा सा घास का पत्ता, उसको जीवन रस उसी जड़ों से मिल रहा था जो एक दूसरे के साथ गूंथे हुए थे। इस समग्र विविधता के मध्य विभिन्न भाषा, विभिन्न खान पान, विभिन्न चेहरा मोहरा, विभिन्न रूप रंग, विभिन्न उपासनाएं, विभिन्न दर्शन, विभिन्न जीवन शैली, इस समस्त विविधता के मध्य जो एकत्व है, उस एकत्व के साथ संपर्क का अर्थ है डीपर द रूट्स। उन गहरी जड़ों के साथ जितना हम जुड़ेंगे, उतनी हमारी बाहरी उड़ान उतनी ही भव्य होगी। इसी प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम दें। Thank you for the insightful lecture, sir. We are truly grateful for the valuable perspectives you have shared. We are deeply honored to have with us as our chief guest for today's lecture, Professor Parikshat Singh Manas, Director, Consortium for Educational Communication, UGC, New Delhi. Professor Manas's journey from Jammu and Kashmir to leading a national educational media institution exemplifies India's expanding opportunities under the National Education Policy 2020 and reflects the transformative potential of inclusive education. He is the first person from Jammu and Kashmir to be appointed to this prestigious position. Professor Manas earlier served as professor in the Business School and School of Hospitality and Tourism Management at the University of Jammu. A distinguished academic leader, policy reformer, and internationally recognized scholar in education, tourism, and sustainable development, he brings over 2 decades of experience in higher education governance, digital learning ecosystems, and institution building. In addition, Professor Manas has served in significant leadership roles, including chairman of the Jammu and Kashmir Board of School Education and director of the State Council of Educational Research and Training, Jammu and Kashmir. In these roles, he spearheaded path-breaking reforms in curriculum modernization, NEP 2020 implementation, large-scale teacher capacity building, and assessment transformation. Globally recognized for his scholarship in virtual collaborative environments, education, sustainable tourism, destination branding, and education development, Professor Manas has held several prestigious international positions. These include co-leader of the UNWTO Working Group on Tourism and Culture Synergies and Regional Director, Asia and Eastern Europe, World Center of Excellence for Destinations. He has also served as a visiting professor in Russia, Hungary, Peru, and Malaysia, fostering academic diplomacy and global collaborations. It is my pleasure to invite Professor Manas to address the gathering. Sir. Thank you. Mitro, Dronacharya has just spoken. And I was smiling if you would look at the videos all through that. This is a very tough task now. So kindly don't compare me with him. मैं सबसे ये बोलूँगा, मुझे उनके साथ कंपेयर नहीं करिएगा. और सर द्रोणाचार्य का भी कोई भी इनकम नहीं थी, कुछ नहीं था, बड़े बड़े राजा उनके आगे नतमस्तक होते थे, तो हम भी आगे आपके आगे नतमस्तक हैं. I literally don't, I'm short of words. What can I present after he has spoken? But just few thoughts. Please excuse me if I'm not on the right track, because I know you all must be thinking about him and what all he has spoken about. I wish, and all of us must be wishing also, that we might get some part of his skills also. But unfortunately, we'll keep on learning for the days to come. The first aspect, obviously, we have been talking about Bharat Bhoot. I'm going to talk about the fact that what is it actually going to provide us with, and why should we be indulging into it? हमें क्यों करना है? और पहली important aspect है, अगर हम इसमें आगे बढ़ेंगे, the very important aspect which youngsters of today's age need, the mobile era age need, that is adaptability. अगर आपको हर situation में आगे बढ़ना है इस दुनिया में, अगर आपको हर situation में कुछ ना कुछ achieve करना है, adaptability is going to be the key for every youngster.
So I would suggest do more and more research, work towards such perspectives that make you adaptable to any conditions that exist around us. America jitne marji tariff lagwa le. Anything that happens around the globe, if you can change and if you can make that as a positive aspect for you, those 3 years that Mukul Bhai Sahab was talking about, Russia cancelled the cryogenic deal. And India, that is when the basis for ISRO and DRDO was built up. So that adaptability, you all youngsters, the young scholars sitting over here, have to work about. Bharat Bhodh for inclusivity. Let's take everybody along. And that is what our deep roots also talk about. We have to take everybody along with us if we need to really grow. If we need our economy to be real sense number one, not an economy which is number one but is debt ridden. We don't want that. We would not like to have an economy like that. So inclusivity, take everybody along. Every aspect of our universe, that means the country that we are residing in, the place that we are living in, has to grow in a very positive, progressive manner, in an effective and efficient manner. So that inclusivity is a very important aspect. And that is what, in today's world, some of us are lacking. And that is what I would strongly suggest that you all should look towards. Bharat Bodh for universalism. An important aspect that I keep referring towards is that if we want to be universally acclaimed, recognized for our work, we need to understand where we come from, what our history is all about, what our culture is all about. Universalism is the basis for our culture, and that has to be built up. उसे समझना बहुत ज़रूरी है. भाई साहब ने अभी बात की अपनी माता श्री की, उन्होंने कैसे उनको धरती के बारे में समझाया और कैसे कहा. ये सब चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है. I'll not go that much deeper because I don't have that much knowledge also. But the basic fact is that we need to build it up. If you are able to do all these things, there is going to be lots and lots of opportunity. Bharat Bodh for next generation opportunities. How we can grow, how we can build up, how we can have things in such a manner, and we should see opportunities in different areas, not the traditional ones that we have been looking at. And the way the India is shaping up and the way it has shaped up in past 2 decades, the fact is that we can see every field growing, opportunities coming in everything. During my generation also, everybody was thinking of only 2 areas, medicine or engineering. But there were few who were trying to indulge into some different fields. And today we look at it and we see that a lot of opportunities exist. Media is one of those things. A lot of opportunities exist and they have been growing in a very, very important aspect. The last thing that I want, Bharat Bodh for empathy. Have empathy for the people around you. I'm not saying sympathy. Have empathy, because I come from a state, I come from a region where we have seen so many difficult times. Try to put yourself in other people's shoes and try to understand what they are going through, the pain that they are going through. So have empathy for your fellow Indians, for fellow human beings, so that we build up a very good society. We build up a progressive society. We build up a growth-oriented society, which actually is an icon. I don't want India to be number one just for the sake of it, as US or other developed countries keep talking about that we are first in this and first in that. We want to be number one in empathy. We want to be that society which takes care of everybody. But mind it, country first. That's the most important aspect. Coming from a region, I was just sharing with ma'am over here that हम तो एक frontier region से आते हैं, जैसे कि अफगानिस्तान एक time पे frontier था, तो वहाँ पे frontier गांधी थे हमारे. So we come from that region. But the fact is, understand the pain of other people. The day you start understanding that, that is actually going to be making us real sense number one in this world.
I don't have much words because I really, literally, I'm short of words, and I'm still analyzing his words and his lecture. And obviously, he's an icon in his field. And we can't be compared to it. And KG Suresh sir has not done the right thing by making me chief guest in such a difficult situation that I had to speak over here. But these were my few cents, few thoughts, मेरे कुछ विचार जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ. बहुत सारा कुछ लिखा था, बहुत सारा कुछ बनाया था, but I'm not going to talk about that because that is immaterial right in front of him. But the fact is that try to follow some of the things that I talked about, because that is something which I really feel once every Indian starts doing it, we will real sense be number one in the world, and we will be leading this world. This is how we were leading the world once, and this is how we are going to again lead the world one. Jai Hind. Namaskar. Thank you, sir. With that, the floor is now open for a question and answer session. I'm Dinesh Sharma. I'm a freelance journalist. And my question is to Mr. Mukul Kanitkar. Mr. Kanitkar, I'm a fallen angel. You know, according to Bible, this Satan was also an angel, and when he refused to obey God, he was turned into an Satan. I was a Marxist, I'm no longer, so I have been turned into a kind of Satan by Professor Suresh, you know. Anyway, my question is, you know, when Marx wrote this poverty of philosophy and this declared religion as opium of the man, probably he had not read this Indian philosophy and in Rig Veda. My question is about the Rig Veda. I am amazed by this creation hymn in Rig Veda. It is nothing but the Big Bang theory. If you read the Big Bang theory exactly, and I will just quote one line, 2 lines. There was neither non-existence nor existence, then neither the realm of space nor the sky which is beyond. Means this universe or Brahmanda, actually now the universe is not the right word because science says multiple universe. Brahman is the only, I think, correct expression. So it came from nothingness, and this is what. How do you explain this? How could thousands of years the Indian philosopher, the Rig Veda, whoever wrote, how could they go back to the basics, the fundamental thing which now science is saying? I would like to throw some light on this. एक तो मार्क्स का भाग्य नहीं था कि वो भारत में आए, इसलिए बेचारे की कुछ बातें तो अधूरी रह गई. और रिलीजन उसने जो देखा था उसके बारे में उसने जो लिखा, आई डोंट डिसएग्री विथ हिम अबाउट दैट, क्योंकि दुनिया को 2 भागों में बांट कर देखने वाले रिलीजन के बारे में उसने जो लिखा उसी में से निकला था प्रोटेस्टेंटिज्म. प्रोटेस्टेंट एथिक्स में से एक तरफ कैपिटलिज्म निकला, एक तरफ मार्क्सिज्म निकला. तो इसलिए बेसिकली इट वाज एंटी चर्च द होल सिचुएशन. उस कारण से उसने वो कहा होगा. भारत में बिना आए भारत के बारे में बहुत कुछ कहा, वो अलग विषय है. लेकिन ऋग्वेद के नासदीय सूक्त का आपने वर्णन किया. बात केवल ऋग्वेद के नासदीय सूक्त की नहीं है. स्वामी विवेकानंद को जब ये प्रश्न पूछा तो उन्होंने कहा, और उनको ये प्रश्न इटली में पूछा गया था, और इटली में जब उनको ये प्रश्न पूछा गया कि आप भारत के ऋषियों के ज्ञान को और पश्चिम के ज्ञान को किस प्रकार देखते हैं, तो उन्होंने बहुत सुंदर बात की. उन्होंने कहा कि जो संस्कृति का केंद्र, जिसको आज ये फ्रंटियर कह रहे थे, वो सप्त सिंधु का प्रदेश जो संस्कृति विश्व संस्कृति का केंद्र था. स्वामी विवेकानंद कहते एक ऋषि उठा और वह पूर्व की ओर गया, उसने अपने अंदर जाकर के ज्ञान को पाने की कोशिश की. एक पश्चिम की ओर गया, उसने बाहर जाकर के ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश की. दोनों खोज यदि निष्ठा से की जाए, यदि पूरी ऑनेस्टी से की जाए, तो एक ही सत्य पर पहुँचेगी, क्योंकि सत्य 2 नहीं हो सकते. एज देयर कैन नॉट बी 2 इन्फिनिटीज. यदि एक अनंत है तो दूसरा कहाँ रखोगे? जैसे अनंत एक है वैसे ही शून्य भी एक है. इसलिए अंदर की खोज भी वहीं पहुंचती है जहाँ बाहर की खोज पहुंचती है. बाहर की खोज में ठोकरें ज़्यादा लगती है, अंदर की खोज में आनंद अधिक होता है. अनुभव से बता रहा हूँ. इधर बहन को पहले ले लें तो फिर आप. वो है, और वो पीछे भी इंतजार, शायद हाथ आपने माइक के लिए किया था.
भाई साहब आपने कहा हिंदी की बात, तो मैं हिंदी में अपना प्रश्न नहीं, पूछूंगी। मेरे को अंग्रेजी से कोई परहेज नहीं है। अब ये whatever मुझे भी नहीं। आप स्वप्न जिसमें देखते हो। तो मेरा नाम प्रज्ञा मलिक है और मैं शोधार्थी हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय में। भाई साहब अभी आपने अपने वक्तव्य में बोला बीकानेर की आपने बात कही, प्राकृतिक की बात कही, फिर वहीं हमने प्रदूषण और इन सब की भी हमारी बात हुई। अभी जैसे आपने बोला कि बीकानेर में घने जंगल लगा दिए, या इस तरह तरह के हमारे पास एग्जाम्पल्स आते रहते हैं कि रेगिस्तान में धान बो दिया जहाँ पे पानी ही नहीं होता है, या फिर ऐसी जगह जहाँ पे पानी है वहाँ पे ऐसी चीज़ों को उगा दिया। वैज्ञानिक दृष्टि से और विज्ञान की दुनिया में ये एक उपलब्धि हो सकती है, लेकिन मेरा ये प्रश्न है क्या ये वास्तविकता में उपलब्धि है अपनी प्रकृति से, उसके रियल जो अस्तित्व है, जो उसका नेचर है, उससे छेड़छाड़ करना, तो ये उपलब्धि है या आप जब फ्यूचर में जाएंगे इसको आप छेड़छाड़ के रूप में लेंगे, या इसका क्या हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि जैसे हम छेड़छाड़ अपनी प्रकृति के साथ कर रहे हैं इसका। नहीं, बीकानेर का किस्सा अलग है। आप जो कह रहे हो वो ठीक है कि जो प्रकृति का स्वभाव है उसको बदलने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, ये ठीक है। बीकानेर में प्रकृति का छेड़छाड़ करके हरियाली नहीं हुई है। वहाँ गंगा नहर गई, गंगा नहर जाने के कारण पानी उपलब्ध हुआ, पानी उपलब्ध होने के कारण पारिस्थितिकी बदली। इसलिए बीकानेर इज़ ए टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ स्टडी। और बीकानेर में वहाँ का संस्कार ही ऐसे बना, वहाँ के लोगों का संस्कार ऐसे बना कि एक एक बूंद को वो संजोते हैं। अपने अनिल अग्रवाल जी की पुस्तक है, कभी आप पढ़ना, राजस्थान की रजत बूंदे। तो वो राजस्थान की रजत बूंद उन्होंने जल के बूंद को कहा है। राजस्थान की रजत बूंदे आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे एक समाज ने जल के महत्व को समझा और जल का संरक्षण किया और उसमें से हरियाली आई। इसलिए आपका प्रश्न बीकानेर के उदाहरण से ठीक नहीं है, लेकिन आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है। प्रकृति के स्वभाव को नहीं बदलना चाहिए, प्रकृति के स्वभाव को बदलना भी उतना ही बड़ा एक चुनौती बन जाती है। अभी वैज्ञानिकों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, सब सहारन जो डेजर्ट है, उप सब सहारन डेजर्ट में हरियाली देखी गई सैटेलाइट फोटोग्राफ्स में, और सब सहारन डेजर्ट्स में हरियाली आने के कारण से अमेज़न फॉरेस्ट के अंदर का सारी पारिस्थितिकी बदल रही है, वहाँ की बारिश का गणित बदल गया। तो बात वही है, बाहर की विविधता के मध्य का जो एकत्व है कि मैक्सिको में ऑयल स्पिल होता है और अंडमान के कोरल को उससे खतरा होता है, ये जो सारा विश्व एक है, इसको जब हम समझेंगे तब व्यवस्थित होगा। इसलिए प्रकृति के विपरीत जाना कभी उपयोग नहीं हो सकता, प्रकृति को साथ लेकर के करना ही उसका उपयोग। यही मेरा बिल्कुल ठीक है आपका। और इसीलिए ये प्रदूषण का भी कारण मनुष्य है, प्रदूषण का कारण प्रकृति नहीं है, पराली नहीं है। कोरोना में एग्रीकल्चर नहीं बंद हुआ था, किसान ही था जो कोरोना में भी हल चला रहा था, नहीं तो हम खाना क्या खाते। और 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन सरकार कहाँ से देती। तो किसान ने तो धान उगाया था और पराली भी जलाई थी, हमने गाड़ियाँ चलानी बंद की थी, तो AQI ठीक हो गया था। AQI हमारी गाड़ियों से गड़बड़ हो रहा है। घर के 4 लोग 4 गाड़ियों से जाने की जगह शेयर करना शुरू कर दे, मेट्रो का अधिक उपयोग करना शुरू कर दे, AQI नीचे आ जाएगा। Sir, thank you for an enlightening speech. My question is, when will India find its rightful place in the world? हमें बहुत अच्छा लगता है इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, बट गति और इक्वालिटी। नॉस्ट्रेडामस ने कहा था वो तो काल शुरू हो गया है। लेकिन मैं कोई भविष्यवेत्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को कह सकता हूँ, और आप में से कई लोगों से मैं आयु में बड़ा हूँ, और फिर भी मैं आप लोगों को गर्व से कह सकता हूँ, हमारे जीते जी हो जाएगा। संत तुकाराम का मराठी में भजन है जिसके शब्द है, याची देही याची डोळा, इसी शरीर में इन्हीं आँखों से हम इस स्वप्न को साकार होता हुआ देखेंगे। हमारी अनेक पीढ़ियों ने इसके लिए जीवन दे दिया, विदाउट even knowing whether, not when, whether it will happen. We are fortunate ones who will see it happen. मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हर संस्कृति की अपनी एक पहचान होती है, पाश्चात्य जो सभ्यता है उसकी पहचान भौतिकता रही है, क्योंकि भारतीय सभ्यता जो है उसका जो मूल आधार जो रहा है वो संक्रांति की ओर रहा है।
तो क्या जो मॉडर्न एज में हम जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं या जो तौर तरीके अपना रहे हैं, हमें इसी ओर आगे बढ़ना चाहिए या जो संक्रांति जो भारत की मूल पहचान रही है उस तरफ बढ़ना चाहिए? नहीं, हम तो वैसा ही करते हैं। भारत में और कुछ हो भी नहीं सकता। आप मतलब प्रयास कर लो, नहीं होता है। अंग्रेज़ों ने 200 साल लगा दिए ना अंग्रेज़ी हमको पढ़ाने के लिए, और 200 साल पूरी सरकारी तंत्र लग गया, पूरा व्यापार तंत्र लग गया, पूरा मार्केट फोर्सेस लग गए, सब ने इतना इतना ज़्यादा नैरेटिव बिल्ड कर दिया कि अंग्रेज़ी के बिना प्रगति नहीं, अंग्रेज़ी के बिना प्रगति नहीं। उसके बावजूद 2011 के सेंसस में केवल 12% लोगों ने कहा कि हमको अंग्रेज़ी आती है। मार्क माई वर्ड्स, आई डिड नॉट से 12% लोगों को अंग्रेज़ी आती है, आई कैन नॉट वाउच फॉर देम। उन्होंने कहा कि हमको आती है 12% ने, लेकिन 88% लोगों ने माना कि नहीं आती। भाई 200 साल के प्रयास के बाद 88% अंग्रेज़ी को नहीं स्वीकार कर पाए। तो भारत में और कुछ होता भी नहीं है। भारत में यही होता है कि 1 जनवरी को काशी विश्वनाथ में और अयोध्या में भीड़ लगती है। मैं केशव कुंज में रहता हूँ, झंडे वाला के सामने इतनी लंबी लाइन थी 3 किलोमीटर की कि 1 जनवरी को सुबह 4 बजे उठ कर के लोग देवी माँ का दर्शन करना चाहते हैं। नए वर्ष पे देवी माँ का दर्शन करेंगे। अरे मैंने कहा रात को 12 बजे शुरू हो गया। नहीं, बोले वो तो उनका है, हमारा तो सुबह ही शुरू होता है सूर्योदय के साथ। तो भारत की संक्रांति को तो कोई मिटा नहीं सकता। और जब दुनिया की जैन जी आंदोलन कर रही, भारत की जैन जी भजन क्लबिंग कर रही है। तो इसलिए संक्रांति ही विश्व का मार्ग है। और इसलिए पाश्चात्य भी जो कहते हैं वो तो 500 साल का खेल कह रहे हो ना आप। उससे पहले का पश्चिम क्या था? मायन संस्कृति क्या थी? शेरोकी ट्राइब जो अमेरिका की ओरिजिनल ट्राइब्स में से एक है, अनेक है और ऐसी, जो पहले वहाँ पर रहती थी कोलंबस को जाने से पहले, वो तो अपने जितनी प्रकृति पूजक थी, अपने जितनी प्रकृति के साथ मिलकर के रहती थी। ये तो एक विचारधारा ने सारे विश्व को अपने द्वारा भौतिकता में और भोगवाद में डाल दिया। तो ये बहुत छोटा इतिहास है, 15वीं शताब्दी के बाद का इतिहास है। 1498 में भारत में आए, 1496 में अमेरिका पहुँचे। वो उसके पहले वो पोप ने बांट दिया, स्पेन इधर जाएगा, पुर्तगाल इधर जाएगा, ट्रीटी ऑफ ट्रसडिल्स हुई। और वो सारा इतिहास आप पढ़ेंगे तो मतलब ये बहुत पुराना इतिहास नहीं है। आज जो पश्चिम हम कहते हैं वो बहुत पुराना नहीं है। अमेरिका में जब स्वामी विवेकानंद का इफ़ यू आर सो ग्रेट व्हाई वेर यू एनस्लेव्ड बाय द ब्रिटिशर्स, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा अरे अभी तुमको गिन 400 साल हुए हैं, यू आर ए टॉडलर, व्हाट आर यू गोइंग टू टीच अस, वी आर ए टाइम टेस्टेड कल्चर। तो इसलिए जब आप पश्चिम को भी दोष देते हो तो बहुत उनके साथ अन्याय करते हो। ओरिजिनल पश्चिम वो भी नहीं है ना। तो ओरिजिनल जो एबोरिजिनल जिनको कहते हैं, जो इन आक्रमणों से पहले ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, न्यूजीलैंड में रहते थे, या कनाडा में रहते थे, अमेरिका में रहते थे, वो तो बिल्कुल हमारे जैसे थे भाई। वो भी अरण्य संस्कृति वाले थे, वो भी अरण्यक थे। तो इसलिए वो सारे, इसलिए उनको इंडियन कहा ना, तो आज भी रेड इंडियन कहते हैं, क्योंकि कोलंबस को गलतफहमी होगी कि इंडिया पहुंच गया, इंडिया खोजते हुए गया था। तो इसलिए पश्चिम को भी दोष देना बंद करो। वो भी बेचारे अपनी ईमानदारी से अपनी सही बात को कह रहे। लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहते हैं कि अमेरिका सारी दुनिया को डुबाना चाहता है। मैंने कहा नहीं, वो सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। नहीं, वो तो जहर खिला रहा है। लोग कहते हैं, हमारे मित्र भी कहते हैं, बड़े जोश जोश में ये हिंदुत्ववादी वगैरह लोग भाषण देते हैं, ये पाश्चात्य संस्कृति ये कर देगी वो कर दी। अरे मैंने कहा यदि जहर खिलाने वाला होता तो खुद नहीं खाता। यदि मेरे को पता होता कि मैकडॉनल्ड्स जहर है तो मैं तो नहीं खाता, आपको खिलाता। वो तो पहले खुद खा रहा है। तो इसलिए उसको बेचारे को पता नहीं है जहर है, वो अमृत समझ करके ही गलत चीज कर रहा है। और इसीलिए वो चाहता है आवर मॉडल इज द बेस्ट मॉडल फॉर द वर्ल्ड। इसलिए वन साइज फिट्स ऑल उनकी सोच है। भारत की विशेषता ही यह है कि जो कहती है देयर कैन नॉट बी वन साइज, डाइवर्सिटी इज द लॉ ऑफ नेचर। और केवल डाइवर्सिटी नहीं, डाइवर्सिटी भी इसलिए मैं हिंदी में बोला इसलिए कि अंग्रेजी की मर्यादा है, अंग्रेजी में शब्द ही नहीं है। भारत में विविधता, डाइवर्सिटी को विविधता हम ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन वेद का शब्द है नानात्व, नाना। और नाना शब्द का अर्थ है कोई भी दो एक जैसे नहीं है। ईच वन इज यूनिक। यह विविधता नहीं है। विविधता में भी क्लास होते हैं, इसमें क्लास ही नहीं है। ईच वन इज यूनिक।
ऐसा नमूना दूसरा नहीं है दुनिया में। हंसो मत, आप जैसा भी नहीं है। होता तो आधार कार्ड नहीं बनता। ये बायोमेट्रिक यूनिक है, इसीलिए तो आधार कार्ड बना ना। ऐसे उंगलियों के निशान दुनिया में किसी के पास नहीं है। इतने हम एकमेवा द्वितीय, इसको कहते हैं नानात्व। भारत ने पहचाना इतना नानात्व है कि किसी को मैं मेरे जैसा कैसे बना सकता हूं। इसलिए हमारे संत ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वरी लिखने के बाद प्रार्थना करते, पसायदान उसका नाम है, उसमें वो प्रार्थना क्या कहते हैं, विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो। The world should see its own dharma. Each one should be able to realize his or her own dharma. Swadharma. That is the beauty of Bharat. इसलिए हम दूसरे को हमारे जैसा बनाना नहीं चाहते। हम कहते हैं तुम तुम्हारे जैसे ही अच्छे बनो, तुम तुम्हारा स्वभाव लेकर के अच्छे बनो। इसलिए अस वर्सेस दे का मत करो, पश्चिम विरुद्ध पूरब मत करो। वो करते ही भारत बहुत खत्म, एम्पथी खत्म। एम्पथी तो है, ऑल आर वन। इसलिए एकमात्र विश्व की संस्कृति है जो प्रार्थना करती है सर्वे भवन्तु सुखिना, कोई और नहीं करता। बाकी सब लोग कहते हैं मेरे भगवान को मानने वाला, मेरे भगवान को नहीं मानेगा तो मुक्ति संभव नहीं। कन्वर्शन का आधार ही ये है कि मुक्ति चाहिए तो मेरे भगवान को मानो। हम नहीं मानते, हम तो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना। और केवल मानवा भी नहीं, वनस्पति औषधय शांति, वनस्पतय शांति, पृथ्वी शांति, आप इनएनिमेट भी, नॉट जस्ट इन ह्यूमन, सबके अंदर के चैतन्य को देख करके सबके सुख और निरामय की प्रार्थना करने वाला ये देश। यहां पर अस वर्सेस दे करना तो अभारतीय है। हमारे लिए कोई दे है ही नहीं, ऑल आर अवर्स। वो बेचारे थोड़े भटके हैं, आ जाएंगे। अभी बहुत लोगों को हरे राम हरे कृष्णा ने नचा दिया है। बोल दो, सुनाई देगा। नहीं, जड़ों को काटने का प्रयास तो बहुत लोग करते रहते हैं, सदियों से, हजारों वर्षों से कर रहे। क्या मतलब, करते ही रहते हैं ना। मतलब 1000 साल, अभी 2-4 दिन पहले ही 1000 साल हो गए सोमनाथ को तोड़ने वाले को हमने स्मरण किया। लेकिन उसके 800 वर्षों के बाद महाराजा रणजीत सिंह गए तो गजनी से सोमनाथ का और सोने का दरवाज़ा लेकर के वापस आए। मुझे बताओ, 800 साल तुम्हारे पास ना मोबाइल था, ना इंटरनेट था, ना कोई www था, ना कोई डाटा बेस था, न किसी प्रकार का आर्काइव्स था। 800 साल इस राष्ट्र की स्मृति में सोमनाथ कैसे रहा? कहाँ गुजरात का सोमनाथ, कहाँ लाहौर में राजा रणजीत सिंह। और वो गजनी पर जाते हैं तो बाकी कुछ नहीं मांगते, शरण आए गजनी को कहते हैं हमारे सोमनाथ का सोने का दरवाजा लेकर के आए थे वो दो। और वो दरवाजा लेकर के 800 साल इस राष्ट्र ने स्मृति में कैसे रखा सोमनाथ को। सबसे बड़ा चैलेंज आत्मविस्मृति है। भारत का सबसे बड़ा चैलेंज आत्मविस्मृति है। वी हैव फॉरगॉटन आवरसेल्व्स। ये जो स्वयं को भूलने की बीमारी है ना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और ये सब स्वयं का भूलना, मतलब उस विपरीत काल में वह विस्मृति नहीं हुई थी। लोक के गीतों में, संतों के प्रवचनों में, कथाओं में, माँ की लोरियों में और चरखा चलाते समय गाने वाले गीतों में, तंदूर के चारों तरफ नाचते हुए गाने में, लोहड़ी को परिक्रमा करते हुए नाचने वाले गीतों में हमने जीवित रखा था सोमनाथ के द्वार को। आज इतना इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन होने के बाद हम अपने आप को नहीं पहचान रहे, अपने आप को भूल रहे। सबसे बड़ी चुनौती वो है। आक्रमण तो होते रहेंगे, आक्रमणों से कभी भारत नहीं हारा, भारत हारा स्वयं से। जब हमने स्वयं को भूला तब हम हारे।
इसलिए वो सबसे बड़ी चुनौती मुझे लगता है, वो जगाना। और वो क्या, जगाना तो बहुत सरल होता है, जो सोता हो उसको जगा दो। इसलिए वो मिश्रा जी ने कहा ना, इन्होंने जगाया है तो आ गए। जो नाटक करता है सोने का, उसको जगाना बहुत कठिन होता है। और मैं 30 साल से ऐसे ही लोगों की खोपड़ी फोड़ रहा हूँ जो सोने का नाटक करते हैं। We have time only for one more question. Rest, and when he leaves, you can ask him. हाँ, no problem. Whatever you are comfortable with. Hope you understood my Hindi. Okay, thank you. I'll start with saying that we talked about the Western tradition, and Stephen Hawking has written a book, A Brief History of Time, and in that book he tries to put a structural limitation of the Western knowledge, and in saying that it attempts to answer the why questions with how questions. Now in answering how questions, why questions get answered to a certain extent, but the why questions don't dissolve, and David Chalmers says it's a hard problem of consciousness. I'm a scholar of Sri Aurobindo, and Aurobindo points to this very specific idea that involution is to be accepted as the beginning of. So the whole point is there is this structural limitation of the Western thought and a certain paradigm shift that is required, not only for the upliftment of, let's say, in the Indian knowledge system, but to pivot the entire world's ability to, further in sciences, including in physics, and all these hard sciences have not seen big progress after the early 20th century. We feel stuck in physics and all these domains that initially, a lot of progress was coming from West, but that has reached to a pinnacle point. Now, that in Indian education would require a sort of an epistemic shift in terms of how do we understand even the word such as scientific temperament and all. So that's a lot of hard work, and how would you like to guide us on that? नहीं, बहुत आनंददायी है। आप तो अरविंद के भक्त हो यार। अरविंद जितना इंटेलेक्ट की और इन्वोल्यूशन की और सुपर कॉन्शियस सुपरा माइंड की बात करते हैं, उतना ही एस्थेटिक्स की बात करते हैं। After all, he had the French training, so French training cannot go without aesthetics, no? सौंदर्यवृत्त के बिना फ्रांस क्या होगा? जो राफेल को भी गरुड़, मतलब युद्ध के जहाज को भी गरुड़ सा बना दे, वो फ्रांस है। उसमें भी सौंदर्य ले आए, वो फ्रांस है। तो इसलिए बिना सौंदर्य बोध के, इसलिए बहुत कठिन और बहुत हार्डवर्क की ज़रूरत नहीं है, बहुत सहज कलात्मक है, बहुत आनंददायी है। बेसिकली ये केवल पश्चिम की बात नहीं है, प्रक्रिया पर काम भारत में भी हुआ। भारत के जो षट दर्शन है उसको यदि आप समझोगे, फिलोसॉफी के प्रोफेसर के सामने बोल रहा हूँ, क्षमा करना, भारत के षट दर्शनों को यदि आप समझोगे तो दो के 3 ग्रुप में हम उसको देखते हैं, सांख्य और योग, न्याय और वैशेषिक, और उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा। क्यों 3 में देखते हैं? क्योंकि प्रमा, प्रमेय और प्रज्ञा के साथ तीनों काम करते हैं। तो हमारे यहाँ भी तीनों की बात की है, वाई की भी बात की है, हाउ की भी बात की है, हु की भी बात की है। हु, वाई, हाउ तीनों लेकर के चलने पड़ेंगे। और फिर उस प्रमा प्रमेय को जोड़ने वाले प्रत्यय को नहीं छोड़ना है, इसलिए प्रत्यय को नहीं छोड़ने के लिए वैशेषिक आता है। न्याय केवल प्रमेय की बात कर रहा है, तो प्रमेय से ही काम नहीं चलेगा, इसलिए वो प्रत्यय लेकर के आता है। नॉट जस्ट द लॉजिक, बट उस लॉजिक के पीछे का पदार्थ जो है। अब पदार्थ ही शब्द ले लो, संस्कृत इज सच ए ब्यूटीफुल एंड मोस्ट साइंटिफिक लैंग्वेज ना, उसके पद में ही उसका अर्थ छपा है। पद यानी वर्ड, पद में ही अर्थ छिपा है। पदार्थ, पद का अर्थ इज पदार्थ, नॉट मटेरियल। पद और पदार्थ को जोड़ने वाला प्रत्यय होता है। बाबा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है अनाम दास का पोथा, जिनको अच्छी संस्कृत निष्ठ हिंदी पढ़ने में आनंद आता है वो अवश्य पढ़िएगा। एक पैराग्राफ 2 बार पढ़ना पड़ सकता है आजकल के हिंदी वालों को, लेकिन यदि एक बार आपको बाबा की हिंदी हजारी प्रसाद द्विवेदी की हिंदी समझ में आने लगे तो 7 दिन हवा में उड़ोगे, ज़मीन पर नहीं उतरोगे, गारंटी देता हूँ। और ये इतना अद्भुत समझाते हैं पद पदार्थ प्रत्यय को। तो इसलिए वाई, हाउ एंड हु का झंझट भारत में नहीं है। हम तो इस सबको एक करके कहते कहीं से भी निकलो पहुँचोगे वहीं पर। इसलिए जितना आरोहण है उतना ही अवरोहण है।
इवोल्यूशन के साथ इन्वोल्यूशन की बात अरविंद इसीलिए कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमको मनुष्य के रूप में आरोहण करना है और दिव्यता अवरोहण कर रही है, दोनों मिल जाएंगे वहाँ पर। जय श्री राम। तो इसलिए ये तो आनंददायी है, इसमें तो कोई कष्ट ही नहीं है, ये तो साधना आनंद की साधना है। हम अपने अहंकार से उसको कष्टकारी बना देते हैं। इफ यू स्टार्ट सेलिब्रेटिंग ईच अचीवमेंट, छोटी छोटी सिद्धि को जब आप उत्सव मनाना, इसलिए उत्सव प्रिय है, इसलिए आपको उत्सव शुरू करने के लिए बहुत 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 बधाई हो। भारत उत्सव प्रिय इसलिए है कि मन का उत्स जहाँ होता है वो उत्सव होता है, और मन का उत्स कब होता है? जब मन का संकल्प सिद्ध होता है। तो इतना सा संकल्प लो, सिद्ध करो, और सिद्ध के बाद उत्सव मनाओ, हाँ एंजॉय करो, और फिर देखो कैसे लंबी छलांग लगती है, पता भी नहीं चलता। मेरी माँ बचपन में कथा सुनाती थी कि एक किसान का बेटा था, किसान के गाय ने बच्चे को जन्म दिया। वो छोटा 4 साल का बेटा जा कर के वो बीच बीच में, उसकी क्यूरोसिटी है, और वो प्रसव के बाद में पिता को, डिलीवरी के बाद में पिता को, मैं जानबूझ के बीच बीच में अंग्रेजी शब्द डाल रहा हूँ ताकि हमारे लोग भी समझ जाए, जेन जी। तो प्रसव डिलीवरी के बाद में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं किसान को, धोना पड़ता है, दूध पिलाना पड़ता है, गाय को चारा खिलाना, वो काम कर रहा है, ये बीच बीच में लुड़बुड़ कर रहा है, किसान को डिस्टर्ब हो रहा है। पर एक अच्छा पिता झिड़कता नहीं है, एक अच्छा पिता उस क्यूरियोसिटी को ख़त्म नहीं करता, वो एंगेज करता है। जैसे एक अच्छा साधक मन को नकारता नहीं है, मन को एंगेज करता है, वैसे ही उसने उस बालक को एंगेज किया। बोले वो बच्चे को, छोटे बछड़े को धूप लग रही है, जरा जा कर के वो पेड़ के नीचे सुला दो। अब वो छोटा सा बच्चा जो आरण्य जैसे ग्राम्य संस्कृति से जुड़े होंगे, उन्होंने गाय का छोटा नवजात शिशु देखा होगा, तो उनको मेरी बात समझ में आएगी। वो गुलाबी सा सुंदर सा, और उसके वो रोए सुनहरे सूरज में चमकते हुए, उस छोटे बच्चे ने उसको हाथ में उठाया, उसके उस त्वचा से गुदगुदी हो रही, वो फिसल रहा है, उसने कहा अरे फिसल ना जाए, उस चिंता से उसने उठा करके उसको गर्दन पे रख दिया, 2 टांगे इधर 2 टांगे इधर ले जा करके, और 4 साल के बच्चे के लिए गर्व का विषय था उस बछड़े को उठाना, ले जा करके छोटे से पेड़ के नीचे, वो पेड़ के नीचे छोटे से बछड़े को रख दिया। अब ये रोज का खेल हो गया, पिताजी दूध दोहने जाते, बच्चा भी साथ में जाता, बछड़े के दूध पीने के बाद ये बेटा बछड़े को उठाता, 2 टांगे इधर 2 टांगे उधर पेड़ के नीचे ले जाके बांध देता। धीरे धीरे बच्चा भी बड़ा हुआ, धीरे धीरे बछड़ा भी बड़ा हुआ, 18 साल का हुआ मुष्टंडा, तो एक बैल को कंधे पर उठा लेता था, 2 टांगे इधर 2 टांगे उधर। कितना सहज है बैल को उठाना यदि प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा बढ़े तो साधना सहज होती है, आनंददायी होती है, जब हर सिद्धि का उत्सव मनाते हैं। As we move towards the conclusion of today's program, a formal vote of thanks will be delivered by Sangeeta Gupta ma'am, expressing our collective gratitude to all the dignitaries and participants who have contributed to the success of this session. Thank you, Khushi. Before we conclude, I have the honor to propose the vote of thanks. I would like to express our sincere gratitude to Shri Mukul Kanitkar ji for his gracious presence and inspiring guidance, his insightful and thought-provoking address, which offered deep civilizational perspectives and enriched today's dialogue. His presence today has added both direction and depth to this program. We are grateful to our chief guest, Professor Parikshit Singh Manas, Director, Consortium for Educational Communication, UGC, for gracing the occasion and for sharing his valued thoughts. We thank Professor Bindu Puri, co-convener, ISC ICPR Study Circle, for her academic guidance and continued support to this lecture series and framing the theme clearly and meaningfully. We are grateful to the ICPR for its support and collaboration. Our sincere thanks to Professor Dr. K.G. Suresh, Director, India Habitat Center, for his leadership, encouragement, and continuous guidance and support. The CEO, Mr. Sandeep Tandon, Habitat World, and the Habitat Program Division for their continued support. We also thank Shri Sandeep Kapoor, Deputy Director and Finance Team, Amarnath Sir and his team for his continued support. We also thank Ms. Geeta ma'am and HLRC team
Our appreciation to the video and photography team, the technical and sound team, and every member of Habitat staff, Khushi, and all the teams working backends. Our heartfelt thanks to our esteemed audience, scholars, members, students, and whose presence adds meaning, warmth, and purpose to these initiatives like this. Thank you once again for joining us this evening. We look forward to your participation in the upcoming sessions for the ISC ICPR Study Circle lecture series. Thank you. Dhanyavad.